ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरलक्ष्मी इंद्रकांति आपके समक्ष पुनः पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पर करंट ट्रेंड्स इन मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपसे बात करूंगी। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश टीचिंग बैचलर ऑफ एजुकेशन SECM 02 यूनिट 1 जिसका 1.4 और 1.5 आगे आने वाले लेसन्स में हम डिस्कस करेंगे। English language teaching, that is ELT, has tremendously changed over the centuries. Since then, teachers have ever been in search of better and more effective method of teaching. The popular trends of ELT in the past have vanished today and have substituted by others. Several factors have contributed to the adoption of new trends in ELT, which we are going to discuss in next few minutes. So, literature is the best of what has been taught and written. That is preface and the poem. Arnold. Modern English literature. So, now we are talking about the recent trends which have changed in the past in English language. So, today we will be discussing about creative inclination, pre-independence authors, progressive authors literature, emergence of women, biographical literature, authors from different genres, autobiographical work, diaspora writers, forgotten writers, recent dominant trends, postmodern authors, translation as a new trend in emergence of Dalit and motivational poets and poetry are. So, in creative inclination, English literature has gone on to sow the seeds of creativity in English world around India, Australia, Canada, and Africa initiated a new literature. Colonized countries, Africa and Asia had the Commonwealth literature, new literature in English, and post-colonial literature. Non-colonized countries, Bhutan, China, Iran, Japan, Thailand, and Nepal started their own English literature in English. So now we will be talking about recent dominant trends which are affecting English language and its pedagogy. A sea change took place in the field of literature after independence in India. The mindset of the readers changed from long novels and stories to short stories and short poems. Vast changes was seen in the texture of drama, novels, and poems. Availability of internet and computer has made many people lifestyle easier and comfortable. They do not have time to read and write. जैसा कि आजकल की यंगर जनरेशन के पास समय कम है और एक क्लिक में जब उन्हें दुनिया भर का नॉलेज मिलता है तो वो बड़े बड़े नॉवेल्स पढ़ने की बजाय शॉर्टकट्स रीडिंग पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और यही जो है हमारा बड़ी बड़ी नॉवेल्स की बजाय ये रीसेंट ट्रेंड्स में हमको यह देखने के लिए मिला है कि किस तरह से लिटरेचर ने लोगों के जीवन को और पढ़ने के स्टाइल को प्रभावित किया है. Now, literature has faced a lot of challenges catering to the needs of the modern youth. जैसा कि जो आजकल के ज़माने का युवा है, वो किस तरह की चीज़ों को पढ़ना चाहता है, उसके हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत अधिक परिवर्तन करना पड़ा. उसी हिसाब से देखिएगा मॉडर्न टूल्स, गैजेट्स एंड शॉर्ट मैसेजेस, मैसेजिंग सर्विसेज, SMS have damaged the beauty of English language. सो आपने देखा होगा कि जब हम व्हाट्सएप में और SMS की लैंग्वेज में बात करते हैं तो बड़े टेलीग्राफिक लैंग्वेज में और शॉर्टकट्स में हम बात करते हैं, पूरी स्पेलिंग्स भी नहीं लिखते हैं. इसकी वजह से क्या हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो ब्यूटी थी, जो वोकैबुलरी थी, उसमें बहुत अधिक परिवर्तन आया है. इसलिए प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन भी आज के युवा में मुझे ऐसा लगता है कि देखने में नहीं मिलता है.
एक ग्रेजुएट व्यक्ति भी सही ढंग से, चाहे वह हिंदी हो या इंग्लिश हो, सही ढंग से एप्लीकेशन लिखने में असमर्थ है, क्योंकि हम ये एसएमएस वाली लैंग्वेज को हमारे जीवन का प्रमुख अंग बना चुके हैं। सो एसएमएस लैंग्वेजेस हैव ruined the present vocabulary and spellings, जैसा कि मैंने अभी कहा। ग्रामर इज लॉस्ट एंड ऑलमोस्ट वैनिश फ्रॉम इन द राइटिंग। सो जब हम ग्रामर की बात करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, चाहे वह इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई भी भाषा हो, उसमें ग्रामर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब भाषा में से ग्रामर यदि हट जाएगा, तो आप देखेंगे कि हम गलत वाक्य बनाएंगे और गलत सेंटेंसेस लिखेंगे। आजकल के जमाने में आप देखोगे ब्लॉगिंग है, ट्विटर्स है, माइक्रो ब्लॉगिंग, they are become more popular, and these are the trends that and which has influenced the reading and writing of our youth. Anything that is short and interesting has become a fashion for today's generation. जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि आज की जनरेशन शॉर्टकट पर विश्वास करती है और उनके पास लंबा लंबा पढ़ने के लिए समय नहीं है। मैं दूसरों की बात क्या कहूँ, मेरे पास स्वयं भी व्हाट्सएप में बहुत लंबे लंबे मैसेजेस आते हैं, तो मैं उनको पढ़ना पसंद नहीं करती हूँ। तो वही बात है कि हम शॉर्ट और जो चीज इंटरेस्टिंग बात होती है, हम उस पर हमारा ध्यान जाता है और हम उसी को पढ़ना चाहते हैं। कई बार तो आप सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप के ऐसे कितने लाखों मैसेजेस होते हैं, जिनको हम बिना पढ़े ही आगे की तरफ फॉरवर्ड करते जाते हैं, और उस समय जब हम परेशान हो जाते हैं, जब हमारा व्हाट्सएप या मोबाइल हैंग होकर काम करना बंद कर देता है। So the emerging trends have crippled the art of reading and writing, though this has saved time. तो जब हम बात करते हैं कि लोगों के पास आज समय नहीं है, तो एक तरफ से आप ये कहते हो कि समय की बचत जरूर उसने की है, पर उसकी कॉस्ट हमको क्या देनी पड़ी? उसकी कॉस्ट हमको हमारी वोकैबुलरी, हमारी इंग्लिश ग्रामर, या जो भाषा ग्रामर किसी भी भाषा की आत्मा होती है, और जब वही उसमें से समाप्त हो जाएगा, तो आप देखिए कि भाषा का विकास कैसे हो सकता है। तो जैसा कि मैंने अभी बात की, द वेरियस टेंस में गूगल है, याहू है, नूडल है, ब्लॉगर है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आजकल आईसीटी में काफी इफेक्टिव हो रही हैं, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी हम इसका लगातार प्रयोग करते जा रहे हैं। सो रीसेंट डोमिनेंट ट्रेंड्स की जब हम बात करते हैं, तो हम पहले भारत की ही बात करते हैं। इंडिया विटनेस्ड अ नंबर ऑफ टैलेंटेड राइटर्स, बोथ men and women, from different walks of life. So the creativity, translation, transcriptions, Dalit literature, diasporic writing, post-colonial writing, etc., they are predominantly used in present literature. Then in postmodern and feminist writings are emerging speedily in the Indian English fiction, and many women writers are there. So जब हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि हर जगह हम आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ऐसे में आप देखोगे कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। और आप इसका प्रभाव देखोगे कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट बिकेम अ मेजर प्री ऑक्यूपेशन। सो जैसे कि आप देखेंगे आर के नारायणन, जिनकी मालगुडी डेज बहुत फेमस थी, उन्हीं की एक किताब है द पेंटर ऑफ साइंस, एंड कमला मार्कंडेज अ हैंडफुल ऑफ राइस। These novels discuss the ideas of simple middle class life, जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे कि हम उसको बहुत अच्छे से रिलेट भी कर सकते हैं। तो जब हम इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री की बात करते हैं, जो फॉरेन राइटर्स हुआ करते थे, या फिर आप शेक्सपियर की जो नॉवेल्स देखते हैं, उसको एक इंडियन जो है अपने आप को उससे कनेक्ट नहीं कर पाता है। पर जब से ये इंडियन राइटर्स ने इंग्लिश में लिखना शुरू किया है, जैसा कि मैंने अभी आर के नारायण की बात की, कमला मार्कंडे की बात की, और आगे भी हम बहुत सारे इंडियन राइटर्स की बात करेंगे जिन्होंने इंग्लिश में काफी सारे लिटरेचर हमको दिया है। तो वो चूंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो वो हम उससे बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं, और वो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती है। सो दे डेल्ट विद सिंपल एंड रूरल लाइफ इन लीजरली फैशन। लीजरली फैशन का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि आराम से एक स्टोरी मिडिल क्लास की चलती है। जैसे फिल्मों में एक के बाद एक सीन चलता जाता है, तो हमारी मेमोरी में काफी दिनों तक रहता है। सो आराम से व्यक्ति
कोई हड़बड़ी नहीं है कि आपको एक नॉवेल जो 100 पेज की है, उसको एक ही बार में आपको बैठकर पूरा करना है। आप आराम से 1 दिन के लिए 10, 12, 15 पेज भी उसको पढ़कर स्टोरी की स्ट्रीमलाइन को एन्जॉय करते हुए आराम से आप समय बिता सकते हैं। देन द पॉलिटिकल एंड सोशल थीम्स रिक्वायर्ड अ स्लो थिंकिंग एट एवरी स्टेज। तो जब हम रूरल लाइफ की बात करते हैं, सिंपल और रूरल लाइफ की बात करते हैं, तो वो चूंकि एक हमारे समय का सदुपयोग है या फिर हम एंटरटेनमेंट चाहते हैं, पर वेराज आप जो पॉलिटिकल एंड सोशल थीम्स होते हैं, कई बार वो हमको बहुत सारी बातों को सोचने के लिए मजबूर भी कर देती हैं। जैसा कि मैंने पहले अभी कहा, आर के नारायण का नाम लिया था। उनकी ये 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं, पेंटर्स साइंस, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज की जैसे मैंने बात की थी। द गाइड पर पुरानी फेमस पिक्चर बनी है जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान ने काम किया था। मैंने कमला मार्कंडे की बात की है, तो उनकी 2 महत्वपूर्ण किताबों का मैंने आपके लिए रेफरेंस दिया हुआ है, क्रॉस कल्चरल इंटरैक्शन इन द नॉवेल्स ऑफ कमला मार्कंडे और हैंडफुल ऑफ राइस, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने रेफरेंस में बात की थी। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्री इंडिपेंडेंस ऑथर्स। स्वतंत्रता के पूर्व जो हमारे देश में राइटर्स हुए हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। और ये एक सोचने वाली बात है कि चूंकि हम प्री इंडिपेंडेंस ऑथर्स की बात करते हैं, सो डेफिनेटली दे डेल्ट विद नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, अपने देश के लिए राष्ट्रीय प्रेम, इस बारे में उन लोगों ने ज्यादा लिखा। देन पीपल वर mesmerized with the subjects of love for the country. mesmerized का तात्पर्य यहाँ पर है कि अपने देश के प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार थे। इसीलिए कहा गया था जो मार्टेयर्स होते हैं, हीरो वर्शिप होती है, उस समय आप देखोगे कि सुभाष चंद्र बोस अपने आप में एक नेशनल हीरो हुआ करते थे और उनकी फिलॉसफी और उनका काम करने का ढंग उस समय यूथ को बहुत अट्रैक्ट करता था। सो नोटेबल ऑथर्स पोस्ट इंडिपेंडेंट सलमान रुश्दी हैं, अरुंधति राय हैं, अमिताभ घोष हैं, शशि थरूर है, शशि देशपांडे, मंजू कपूर, अरविंद अडिगा, चेतन भगत, and there are so many others who has written uh, novels in English, and they faced lot of challenges of handling the newfound political freedom. इसका मतलब क्या है कि प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो राइटर्स थे, उनमें लिखने की स्टाइल में भी काफी परिवर्तन आया है, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस के समय जब भारत हमारा स्वतंत्र नहीं था, ऑथर्स के पास उतनी फ्रीडम नहीं थी और लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज भी थे। बट वेयर एज आज आप इंडिपेंडेंस के बाद देखोगे कि ये जो राइटर्स हैं, इनके पास बहुत अधिक फ्रीडम है, इनके पास एक्सपोजर है और इसके साथ साथ इनके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसकी वजह से वे अपनी राइटिंग स्किल्स को और अधिक एनहेंस कर सकते हैं। देन पोस्ट मॉडर्न ऑथर्स में आप देखोगे सलमान रुश्दी की बात की, देन अमिताभ घोष की बात की। उन्होंने क्या कहा, ये खास तौर से आप देखोगे कि इनकी राइटिंग्स में आप इम्पैक्ट ऑफ फ्रीडम हमको देखने के लिए मिलेगा। उसमें आप एक नॉवेल का रेफरेंस है, द हंग्री टाइड, अ नॉवेल बाय अमिताभ घोष क्लियरली शोज हाउ इंडिपेंडेंस हैज नॉट फ्री द ट्राइबल पीपल फ्रॉम द लोकल रूल। इस पुस्तक में उन्होंने इस बात को डिस्कस किया है कि पूरा देश स्वतंत्र होने के पश्चात भी ट्राइबल लोगों की स्ट्रगल आज भी चल रही है। इसी प्रकार मंजू कपूर की प्रोटोगोनिस्ट, जिसको कि नायक के रूप में वर्शिप किया जाता है, उन्होंने काफी एजुकेटेड और अनकन्वेंशनल टाइप की स्टोरीज लिखी हैं, एंड दे आर कॉन्शियस ऑफ देयर इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ वर्थ। सो इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ वर्थ क्या होता है? आप अपने आप की कीमत को स्वयं पहचानिए, तब दूसरा व्यक्ति आपकी कीमत को पहचानता है। ठीक उसी तरह से उनकी एक और नॉवेल अ मैरिड वुमन, she details the turmoil of a woman after marriage and struggle for her equality, identity and self satisfaction. आप सभी जानते हैं कि भारत में विवाह के पश्चात महिला जो है अपने पति के घर जाती है और वहां जाकर उसको अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, ये बहुत खूबसूरती से मंजू कपूर ने अपनी किताब अ मैरिड वुमन में डिटेल में लिखा है। सो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आज जो इंडिपेंडेंस के पश्चात जो राइटर्स हैं, और खास तौर से हम वुमन राइटर्स की बात कर रहे हैं, जो कि वुमन एम्पावरमेंट और महिलाओं के संघर्ष की बात करती है, ऐसा ही संघर्ष इस मैरिड वुमेन में
मंजू कपूर ने पूरी तरह से जस्टिस किया है। सलमान रुश्दी की भी बात की है। आगे आप इस स्लाइड में आप देखेंगे कि उनकी डिटेल्स बुक्स के बारे में बहुत सारे नाम दिए गए हैं। फिर अरुंधति रॉय का नाम लिया है मैंने, जो कि 1997 में उनको बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, खास तौर से द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। फिर इसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी इनका नाम लिया है, अमिताव घोष, ये भी अपने आप में एक बहुत बेहतरीन राइटर रहे हैं और इन्हें जो है जनपद अवार्ड इन 2018 से नवाजा गया, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद शशि थरूर, आप जानते ही हैं कि ये अपनी इंग्लिश और वोकैबुलरी के लिए बहुत अधिक फेमस हैं। ये बेसिकली एक इंडियन पॉलिटिशियन है, राइटर हैं और इसके साथ-साथ ये फॉर्मर जो है इंटरनेशनल डिप्लोमेट थे। तो इनकी भी किताबें जो हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग रहती हैं। फिर चेतन भगत, ये भी अपने आप में बहुत फेमस हैं और उनकी आपने कई सारी नॉवेल्स जो हैं उनकी पिक्चरों में भी बनी हुई है। खास तौर से आप देखोगे द टू स्टेट्स और हाफ गर्लफ्रेंड, ये दोनों पर हिंदी पिक्चर्स बनाई गई हैं। फिर गिरीश कर्नाड, जो कि बेसिकली कन्नड़ा के थे पर अपने आप में हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा कई पिक्चरों में इन्होंने अभिनय किया है। इसके साथ-साथ ये ड्रामा राइटर भी थे और उन्होंने अपनी ही स्वयं की राइटिंग्स को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। Now we will be talking about progressive authors. So social values है, issues have been detailed by number of writers in numerous writings. So social values की बात करते हैं। So आप जानते हैं कि इंडिया में social values जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, वो हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारी ये जो सामाजिक मूल्य हैं, इनको हम हर तरह से बना के रख सकें। तो समाज का हमारे लेखन पर भी प्रभाव पड़ता है और ये प्रोग्रेसिव ऑथर्स की बुक्स में आप उसी तरह का इन्फ्लुएंस देख पाएंगे। जैसे राइटर्स लाइक अरुंधति राय, जिनका नाम मैंने पहले भी लिया है, चेतन भगत, he also discussed the environmental and social freedom struggle in our country. So आप जानते हैं कि environment हमारे विश्व के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है। आजकल आप देखिएगा फोरम कोई भी हो, चाहे वो लिटरेचर का हो, सोशल वर्क का हो, पॉलिटिकल हो, हर फोरम पर हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और एनवायरमेंट अवेयरनेस की बात जरूर करते हैं। एंड बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ स्टूडेंट, वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट आवर एनवायरमेंट, जिसको कि हम मदर अर्थ के नाम से जानते हैं। इसको सेव करना हम सबकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। रॉय एंड भगत, they have sharp call for value clarification therapy, which aims to reduce emotional distress and increases positive behaviors through reinforcement. आप जानते हैं कि आजकल के ज़माने में युवा हो, मिडिल एज हो या एडल्ट हो या फिर ओल्ड एज के लोग हों, वो आज कई तरह के स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। हमारी वर्क स्टाइल, वर्क एंड होम के बीच में जो बैलेंस करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा हमको स्ट्रेसफुल जीवन जीने पर मजबूर कर रही हैं। तो ऐसे समय में आप अरुंधति राय और चेतन भगत की किताबें पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज़ द पॉजिटिव बिहेवियर्स थ्रू रीइंफोर्समेंट। सो आपको इन किताबों को पढ़ने के बाद अंदर से एक पॉजिटिविटी आएगी एंड जो आप जानते हैं कि अभी के समय की दिस इज द ट्रूली द नीड ऑफ द आवर। इसी तरह से विक्रम सेठ भी एक नॉवेलिस्ट हैं जिनकी कई नॉवेल बहुत फेमस रही हैं, जिन्होंने नॉवेल के साथ साथ बहुत अच्छी पोइट्री भी की है। देन रस्किन बॉन्ड, मेरे ख्याल से बचपन में हर व्यक्ति ने रस्किन बॉन्ड की किताबें पढ़ी होंगी। खास तौर से जो बच्चों के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट पर किताबें लिखते हैं, वो जो है बहुत बहुत अच्छी लगती है और आप विजुलाइज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी नेचर के करीब पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इन्हें जो है पद्मश्री से 1999 में और पद्म भूषण से 2014 में नवाजा गया था और ये देहरादून के आसपास रहते हैं, तो नेचुरल ब्यूटी के बीच में रहते हैं, नेचर के बीच में रहते हैं, तो उनकी नॉवेल्स में आपको वो सब दिखाई देगा। इसी तरह से अश्विन सांघी जी हैं, इनकी किताबें भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर से इनका आप देखोगे कि ये जो है फिक्शन थ्रिलर्स में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
देन इसी तरह से है प्रीति शिनॉय, उम्र में ये बहुत छोटी हैं, पर इसके बावजूद भी उनका फोर्ब्स की लिस्ट में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज में इनका नाम लिया जाता है। फिर आती हैं रश्मि बंसल, ये भी बहुत कम उम्र की हैं, इन्होंने भी इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में बहुत अधिक काम किया है और इनकी किताबों का तो 5 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ भी मार्केट में बिक चुकी हैं। फिर किरण देसाई, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ़िक्शन राइटर हैं और इनकी भी कई सारी किताबें जो हैं फ़ेमस हैं। बेसिकली शी इज़ द डॉटर ऑफ अनीता देसाई, जो कि खुद एक वेल नोन इंग्लिश की राइटर हैं। फिर आते हैं रविंदर सिंह, इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, डिटेल सब दिए गए हैं, आप इनके नाम नोट करते जाएँ और आगे आपको भविष्य में जब भी समय मिले इनकी किताबों को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये इंडियन राइटर्स की किताबें हैं, तो आप इनको कोरिलेट भी कर पाएँगे और इसके साथ-साथ आपके पास जब समय होगा तो साथ में डिक्शनरी लेकर बैठिएगा, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएँ, आप अपनी डायरी में नोट करिए और उसके बाद आप डिक्शनरी से इन वर्ड्स को लिख लिया करिएगा, जिससे कि आपकी वोकैब्युलरी भी अच्छे से इंक्रीज़ होगी और आगे आने वाले समय में जब आप इंग्लिश में बात बात करेंगे, तो नए-नए शब्दों का प्रयोग कर अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ा सकेंगे। फिर अनीता देसाई, जैसा कि मैंने अभी इनके बारे में बात की थी और ये बहुत ही बेहतरीन इंडिया की नॉवेलिस्ट रही हैं एंड शी रिसीव्ड न्यूमरस अवार्ड्स फॉर हर वर्क ऑन नॉवेल्स। सो बेसिकली ये नॉवेल राइटर रही हैं और इनको भी 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था हमारी भारतीय सरकार के द्वारा। फिर आप देखोगे कि जब हम न्यू ट्रेंड इन इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, सो नए ट्रेंड्स में आप देखोगे there is a strive for translation of regional literature into English that has become a very new trend in English. सो 21st सेंचुरी में आप देखोगे कि अभी तक जो है लिखने वाले खाली इंग्लिश में लिखा करते थे, पर एक नया ट्रेंड आया है कि जो रीजनल लिटरेचर है उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उन युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है जो कि इंग्लिश का ही ज्ञान रखते हैं, अदर रीजनल लैंग्वेजेस नहीं रहती है। तो उससे क्या होता है, जब रीजनल लैंग्वेज या लिटरेचर जो है ट्रांसलेट होके इंग्लिश में आता है तो उसके रीडर्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे द एंटायर वर्क ऑफ प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती, ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं जिनका की काम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर दिया गया है, जिससे कि पूरे विश्व के लोग आसानी से हमारे भारतीय साहित्य का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा केशव रेड्डी, ही कॉन्कर्ड द जंगल, फिर सुंदरा रामास्वामी की टेल ऑफ अ टैमरिन ट्री, यूआर अनंत मूर्ति की संसारा, और ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने की इंग्लिश लिटरेचर में काफी सारी ट्रांसलेशन किया है। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि गिरीश कर्नाड भी, जो बेसिकली कन्नड़ा में लिखा करते थे, उन्होंने भी अपने लिटरेचर को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया कि सब लोग उसको पढ़ पाए। अब भारत के महान जो हमारे लेखक रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की हम बात करेंगे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बेसिकली उन्होंने बंगला में लिखा था, परंतु उसके बाद उनकी कई सारी बुक्स का ट्रांसलेशन कुछ तो उन्होंने स्वयं किया और कुछ उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर वालों ने भी बंगला से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। काबुलीवाला का मैंने रेफरेंस यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि उसमें काबुलीवाला की एक पिक्चर भी बनी थी, जिसमें मेरे ख्याल से बलराज साहनी ने एक्ट किया था और वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मूवी है, जो कि एक छोटी बच्ची और एक एल्डरली मैन के बीच में बताती है कि कैसे फादर और डॉटर के बीच की जो बॉन्ड होती है, उसका डिस्क्रिप्शन इस किताब में बहुत अच्छे से किया गया है। जैसा कि मैंने कुछ समय पूर्व आपको वुमेन इंग्लिश लिटरेचर में कंट्रीब्यूटर्स की बात की थी, सो रिमार्केबल इमर्जेंस ऑफ वुमेन राइटर्स ऑन द नेशनल स्केल इन द फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन टेक्स्ट। तो आप देखोगे पिछले कुछ समय में इंग्लिश लिटरेचर को वुमेन ने, एक तरह से कहना चाहिए उनका कब्जा इंग्लिश लिटरेचर बढ़ता जा रहा है और हम देखेंगे भारत में ऐसी बहुत सारी राइटर्स हैं जो वुमेन हैं और इंग्लिश में लिख रहे हैं। महाश्वेता देवी, जो एक एक्टिविस्ट थी, वेस्ट बंगाल की थी, एडवोकेटेड द कॉज ऑफ
demeaning the tribals in West Bengal in her book द्रौपदी। फिर अरुंधति राय की बात की है, देन शशि देशपांडे हैं, मंजू कपूर, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल ऑथर्स हैं जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अभी लेटेस्ट में सुधा मूर्ति विद अ सिंपल एंड कन्वर्सेशनल राइटिंग टचेस द हार्ट ऑफ द कॉमन पीपल। और सुधा मूर्ति के मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं, आप उनको देखिएगा तो ऐसा लगता है कि आम आदमी एक दूसरे से किस तरह से बात कर रहा है, उस तरह से वो अपनी स्टोरी में नरेशन ऐसा देती हैं, ऐसा लगता है कि वह घटना स्वयं आपके समक्ष घटती जा रही है। देन रीसेंट ट्रेंड्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें दलित एंड बायोग्राफिकल लिटरेचर की बात हो रही है। बायोग्राफी आप स्वयं के बारे में भी लिखते हैं। सो दलित लिटरेचर में आप देखोगे कुछ नए ऑथर्स आए हैं जो कि खास तौर से मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो रिजर्व क्लास है, उन सब के बारे में भी बात करने के लिए आप देखोगे कारुकू द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ तमिल दलित वुमेन बामा इरेज द डिस्टिंक्शन बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन। सो हमारे समाज में जो भेद हुआ करता था दलित लोगों के साथ, उसके संबंध में काफी डिटेल में इसमें चर्चा की गई है। फिर इसके बाद आती है जूठन। दिस इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ओम प्रकाश वाल्मीकि's presence strongly his birth and upbringing as an untouchable. The book claims the status of great fiction. So इसमें भी आप देखोगे कि वाल्मीकि जी ने जो बचपन से एक अनटचेबल के रूप में उन्होंने जीवन में जो कठिनाइयां झेली हैं उसके बारे में इन्होंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है। इसीलिए दलित लिटरेचर है, बायोग्राफिकल लिटरेचर है, डायस्पोरा लिटरेचर है, this has become the subject of interest in the recent trends in literature. और जब हम recent trends की बात करते हैं, so we have to welcome and see what is there to read for the younger generation. और recent trends are welcome, but it is degrading the classics and convention of literature. क्योंकि जो हम कन्वेंशनल लिटरेचर की बात करते हैं उसमें काफी सोफिस्टिकेशन की बात होती है, पर जब आपके सामने ट्रुथ आता है तो समाज में होने वाली हर घटना का प्रेजेंटेशन उसमें रहता है। सो हो सकता है कि जो हमारे समाज का एलीट सोसाइटी है वो इससे अपने आप को रिलेट ना कर पाए, पर व्यक्ति जब अपने जीवन की घटनाओं को उसमें लिखने की कोशिश करता है तो जो व्यक्ति ने झेला है वह अपने लिटरेचर में भी, अपने लेखन में भी उसका प्रभाव आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। देन ऑथर्स फ्रॉम डिफरेंट जेनर्स की बात करते हैं। सो उसमें आते हैं द प्लेज ऑफ महेश दत्तानी एंड मंजुला पद्मनाभन। she belongs to a different strand of margin away from the mainstream literature. So पिछले कुछ समय में हमने जो बात की है सोशल, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एनवायरमेंट, ये जो है महेश दत्तानी जी हैं और मंजुला, इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रीम के बारे में बात की है। दत्तानी इज अ सक्सेसफुल प्ले राइट, हिज प्लेज एड्रेस इश्यूज दैट सोसाइटी ट्राइज टू हाइड और लुक अवे। हमने क्या कहा कि दत्तानी ने अपने प्ले में, अपने नाटकों में उन मुद्दों को उठाया है जो नॉर्मली एक कहने वाली सभ्य सोसाइटी उन बातों को छुपाने की कोशिश करती है या फिर उनकी तरफ देखना नहीं चाहती है। ऐसे मुद्दों को दत्तानी जी ने उठाया है। ठीक उसी तरह से पद्मनाभ, शी इज इंडियन प्ले राइट, एक जर्नलिस्ट हैं, कॉमिक स्ट्राइप आर्टिस्ट हैं और चिल्ड्रंस बुक ऑथर भी हैं। और her works explore science, technology, gender and international equality. So उन्होंने किसी एक विषय पर ही बात नहीं की है, उन्होंने जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, जेंडर और इंटरनेशनल इक्वालिटी से लेकर ऐसे बहुत सारे मुद्दों को उठाया है। और इसके साथ साथ उन्होंने बच्चों के लिए भी जो है कई किताबें लिखी हुई हैं। देन मोटिवेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ अ फायर and turning points are both scientific and political in their overtones. So the books are a guiding spirit for the Indian youth for a better India. So आप जितना अधिक पढ़ोगे उतना आपके व्यक्तित्व में निश्चित रूप से आपका प्रभाव दिखाई देगा। जिन पुस्तकों की हमने इस लेक्चर के दौरान बात की है,
मुझे ऐसा लगता है कि हर विद्यार्थी को अपने जीवन में इन किताबों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन किताबों को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में बहुत अधिक परिवर्तन आएगा और आपकी सोच में बहुत अधिक बदलाव आएगा। Biographical writing of famous personalities is also in fashion, giving a new book to look to English literature. So biography में जो है जो famous personalities हुई हैं इंडिया में, उन्होंने अपनी लाइफ को जो है एक बुक फॉर्म में दिया है. So presidents and prime ministers of our country have biography on them. एक जमाने में हिस्ट्री में हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे फेमस राजा हुआ करते थे जो अपने बारे में अपने मिनिस्टर ऑफ कोर्ट्स के जो लोग रहते थे, जो उनके यहाँ फेमस राइटर्स हुआ करते थे, वो अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बखान करते हुए अपने बारे में हिस्ट्री में लिखा करते थे। और आज जो बायोग्राफी है वो जो है चूंकि मीडिया हमारा इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है, इतना वाइब्रेंट हो गया है कि इन बायोग्राफी में मुझे ऐसा लगता है काफी कुछ ट्रुथ जो है हमारे यंगस्टर्स को पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे जे.आर.डी. टाटा है, धीरूभाई अंबानी है, आदित्य बिरला है, इन सभी लोगों ने जो है अपनी बायोग्राफीज लिखी हैं। देन डायस्पोरा राइटर्स में झुम्पा लाहिरी हैं, किरण देसाई हैं और ऐसे मेनी सच डायस्पोरिक राइटर्स आर देयर who have different windows on the world of their lives in India and abroad. So जिन राइटर्स की हम बात कर रहे हैं जैसे झुम्पा लाहिरी, किरण देसाई, इनको चूंकि वेस्टर्न वर्ल्ड से भी इनकी लिटरेचर में इन्फ्लुएंस रहा है, ये स्वयं कई बार विदेश जा चुकी हैं और रही हैं, सो इनकी राइटिंग्स में हमको इंडियन सब्जेक्ट्स के साथ साथ थोड़ा सा वेस्टर्न आउटलुक भी देखने के लिए मिलता है. So these writers share the same concern of Indian writers for the cultural bondage. पर एक चीज हमको ये देखना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने दोनों देशों का या विश्व का भ्रमण किया है, सो ये हमेशा इस बात पर जोर देती हैं कि देयर शुड बी ऑलवेज कल्चरल बॉन्डिंग्स. सो जो वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, हमको उसको लेकर चलना चाहिए क्योंकि हम वी आर ह्यूमन बीइंग्स और हम विश्व के किसी भी कोने में रहें, हमारे बीच में वो बॉन्डिंग हमेशा बनी रहनी चाहिए एंड बॉन्डिंग दैट हेल्प्स एंड आल्सो हिंडर अस फ्रॉम इवॉल्विंग इनटू अ हायर लेवल ऑफ लाइफ. झुम्पा लाहिरी की द इंटरप्रिटर्स ऑफ मैलेडाइज हैज मैक्स ऑफ डिसीज. फिर किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस is a pathetic story of an Indian unable to settle anywhere for the social and political cause. So फिर आता है पोएट्स एंड पोइट्री, जो कि आजकल के जमाने में लोग भूलते चले जा रहे हैं. अर्लियर पोइट्री वाज द चीफ मीडियम ऑफ राइटिंग फॉर द एजुकेटेड इंडियन. टुडे पोइट्री डज नॉट sell like short stories and novels. Poetry and poets now lack the support. Then theoretical drama continues to manage the show on the stage in some states in India. So ड्रामा जो है आज भी हमारे भारत के कुछ स्टेट में मौजूद है, पर पोइट्री जो है धीरे धीरे लोगों के बीच में से खत्म होती चली जा रही है. So only time can say whether this state of affair is due to the capitalistic and consumeristic society we live or due to dying of poetic sensibilities. So समाज में पिछले कुछ वर्षों में प्री इंडिपेंडेंस के पहले, इंडिपेंडेंस के बाद और पिछले 35-40 वर्षों में जो हमारी सोच में परिवर्तन आया है, उसकी वजह से पोइट्री जो है समाज से लुप्त होती जा रही है या अन्य कई और कारण है. जिस तरह से हर जगह हमने देखा है कि परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन समाज का महत्वपूर्ण नियम है, आप सभी जानते हैं. सो इस तरह से हमको देखना पड़ेगा कि इंग्लिश लिटरेचर हैज गॉन अ लॉन्ग वे. सो प्री इंडिपेंडेंस कहो, पोस्ट इंडिपेंडेंस कहो, इंडियन राइटर्स की आप किताबों के बारे में बात करो, उनके लिटरेचर के बारे में बात करो या फॉरेन राइटर्स के बारे में बात करो, तो आप देखोगे देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस. क्योंकि आज जो किताबें लिखी जा रही हैं वो आज के यूथ को देखते हुए लिखी जा रही हैं, तो इसलिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी जा रही है जिससे कि हर व्यक्ति उसको पढ़कर उसको कनेक्ट हो सके. क्योंकि भाषा यदि बहुत क्लिष्ट और डिफिकल्ट यूज की जाएगी तो हो सकता है लोग उसको पढ़ना छोड़ दें.
अंत में बस हमको यही देखना होगा कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर शोज साइंस ऑफ चेंजिंग फेसेस। धीरे धीरे लिखने का स्टाइल हमारा बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है। वर्ल्ड लिटरेचर इज अनकंट्रोलेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल, गेटिंग रिचर बाय वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड साइंस। जब हम विश्व में परिदृश्य को देखते हैं, विश्व में लिखने जाने वाले साहित्य को हम देखते हैं, तो वो किस दिशा में जा रहा है इसके बारे में हम आज नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि कई सारे शब्द, वोकैबुलरी उसमें इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि लैंग्वेज काफी लिबरल होते जा रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में भी हिंदी के कई शब्द लिए जा रहे हैं, उर्दू के, और विश्व की कई भाषाओं के शब्द जो हैं आजकल, वो शब्दों के चयन में वो बैरियर नहीं रहा है कि ये शब्द इंग्लिश का है, ये शब्द हिंदी का है। सो वोकैबुलरी काफी रिचर होती जा रही है। सो वो चीज भी हमको इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अधिक परिवर्तनशील दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि इंग्लिश लिटरेचर इंग्लैंड या फिर वो कंट्रीज जो कि सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं वहां तक का सीमित नहीं है, क्योंकि इंग्लिश आजकल एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गई है। तो हर देश, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, जर्मनी हो, जापान हो, धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन और इंग्लिश में काम हमको बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर फोर्सेस अ ब्राइट फ्यूचर with more creativity from a larger population from the downtrodden sections of the society। कहने का मतलब क्या है? इंग्लिश लिटरेचर का ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज काफी पॉपुलर है और समाज में ज्यादा से ज्यादा सेक्शन के लोग इंग्लिश भाषा को जानना, समझना और पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हो रही है और लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी दे स्पीक इंग्लिश ओनली। सो इंग्लिश खाली किताबों की भाषा नहीं है, हमारे आम जीवन में भी इंग्लिश का बहुत अधिक महत्व होता जा रहा है। सो इसके साथ साथ आप देखोगे कि भाषा को प्रभावित करने में ब्लॉगर्स हैं जो कि ट्रैवल के बारे में बहुत अधिक लिखते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति विश्व के कोने कोने में घूमता है और घूमने के पश्चात जो है वह उस एरिया के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके बारे में लिखता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि उसमें बहुत कलरफुल फोटोज होती हैं, देन नेचर की होती हैं, फ्लोरा एंड फौना की होती हैं, एनवायरमेंटल कंट्रास्ट की होती हैं। सो ऐसे कुछ नाम आप इसमें देखेंगे, इनके ब्लॉग्स भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ कोट करने के लिए ब्लॉगर्स को भी लिखा है, जो कि उन्होंने जो है किस तरह से ब्लॉगर्स इंग्लिश में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। ये एक ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, इसलिए इस रेफरेंस को यहाँ लेना जरूरी रहा, क्योंकि हम रीसेंट ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। तो नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, पोएट्री, ड्रामा, ये वहां तक ही सीमित नहीं है। आपको यदि इंग्लिश में कमांड है तो आप एक अच्छे ब्लॉगर भी बन सकते हैं, जिसके कि कुछ उदाहरण हमने इन स्लाइड्स में दिया है, और अंत स्लाइड में हमने कुछ रेफरेंसेस भी दिए हैं। और आप आगे और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सो इन रेफरेंसेस के माध्यम से आप उसको बहुत डिटेल स्टडी कर सकते हैं। नमस्कार।